Hello? Hello? Am I audible? Yeah, you are audible. You can start. Okay, sir. Um, Good evening, everyone. Um, Six people have joined, I guess. So now we can start. Um, Let me first start with the exam pattern. You all might be aware of the exam pattern already, but let me just brief you about it once more. There will be total 100 questions, and you will be given a total of 3 hours. Okay, so there will be two type of questions. First is your MCQ. Right. You There will be 100 questions, and total time will be 3 hours. Questions will be of two types. First will be MCQ, and second type questions will be NAT. ठीक है, MCQs में you have four options and there will be a negative marking as well. But NAT में you have to this is the numerical answer type questions, and there is no negative marking. Okay, so you don't have to leave any NAT type question in the exam. You have to attempt all the noise. Carry on. Voice is clear. Might be she's having some issue with the network. Lipsa, I think you have some network issue. Please check your network. Yeah. So all whole the question paper will be divided into two sections. Okay, section A and section B. Section A will be your general aptitude section. इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे. इसमें तुम्हें पढ़ के जाना है. प्लीज राइट इट डाउन. ओके, तुमको पता नहीं अलग से ये पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, बट यू शुड बी नोइंग दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस. वो बिल्कुल 10th 11th के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. सब कोई कर सकता है ये क्वेश्चन, बट जरूर देख के जाना ये क्वेश्चंस. इसमें प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, compound interest, speed and distance. Okay, sir. So yeah, if sir is covering, please do attend all the classes for journal aptitude questions. You do please don't leave these 10 questions. These 10 questions are they will make your base for the paper. Okay, so speed and distance, then you have direction, देन इंग्लिश ग्रामर आएगी, इजी ग्रामर होगी, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और टेंसेस वगैरह सब कुछ देखना. मेंसुरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेंसुरेशन करके जाना. इसमें सारे फॉर्मूलाज देखना. ठीक है, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, सब चीज की, सारे 2D सारे 3D स्ट्रक्चर्स के मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलाज देख के जाना. स्पेशल फोकस देना पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम, ऐसे वाले फिगर्स में. देन सेक्शन बी में सेक्शन बी में जो होगा तुम्हारा इससे आएगा, सब्जेक्ट से आएगा. इसमें बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कम आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते. फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं. मैंने देखा है सारे क्वेश्चन पेपर्स, उसमें स्पीशीज पे क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के नाम दिए. सॉरी, एंडेंजर्ड species के नाम दिए, and you have to match them to the area they are found in. Just like for example, where in India red panda is found in, so you know that red panda is found in upper stretches of West Bengal, that is the Darjeeling region, and Sikkim. So another example can be where is your this lion tailed macaque is found. Does anybody know that? Golden langur, where is that found? So these kind of species that are critically endangered and endangered species, right? Western Ghat. uh, Nilgiri Thar, for example, Nilgiri Thar is only found in the Western Ghats in the Nilgiri Biosphere Reserve. So these kind of questions you should be able to do. These are the factual questions, and very
इजीली मार्क्स ऑब्टेन हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस नहीं छोड़ने। इसके लिए ना तुम एक काम करना, एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था इन्वेजिव स्पीशीज के बारे में। इन्वेजिव स्पीशीज में ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन सी स्पीशीज इन्वेजिव स्पीशीज हैं। ठीक है, और फिर उसमें यही था ABCBCD ऐसे वाले क्वेश्चंस। तो इसमें तुम लोग को एक काम करना है, जितने भी थ्रेटेंड कैटेगरीज है इंडिया की, थ्रेटेंड में भी सिर्फ क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड स्पीशी की एक लिस्ट बना लेना। लिस्ट में क्या करना है तुमको, कैटेगरी वाइज उनको लिखना है। ठीक है, मैमल्स अलग, बर्ड्स अलग, रेप्टाइल्स अलग, ऐसे करके, और उनके आगे उनके जहाँ पे वो मिलते हैं, ठीक है, इंडिया में, सिर्फ इंडिया का, उस उसका बस एरिया का नाम लिखना है। ठीक है, इतना अगर तुम करोगे तो तुम्हारा फैक्चुअल क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बाकी मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। मैं तुमको फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या क्या तुमको याद करके जाना है, उन सब की लिस्ट बता दूंगी। फिर आते हैं तुम्हारे नेट टाइप क्वेश्चंस। नेट टाइप क्वेश्चंस में कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चंस तुमको अटेम्प्ट करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस तुमको यहाँ पे सिखा दिए जाएंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस, कोई भी डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे क्वेश्चंस तुम्हारे कंसेप्ट बेस्ड होंगे। इसमें 2-3 कंसेप्ट भी मर्ज कर सकते हैं, वो एक कंसेप्ट भी बेस्ड हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन सिर्फ प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सॉरी, और यहाँ लिख रही हूँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, स्पेशली प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और स्टैटिस्टिक्स, ये क्वेश्चंस जरूर मतलब ये क्वेश्चंस भी देखेंगे अभी हम प्रीवियस ईयर के, और इन पे फोकस देना, थोड़ा अच्छे से करना इनको, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में थ्योरी के साथ इन तीनों को मर्ज करते हैं। ठीक है, थ्योरी के साथ वो स्टैटिस्टिक्स को मर्ज करके देंगे, प्रोबेबिलिटी को मर्ज करके देंगे। तुम्हें पूरा पैराग्राफ मिलेगा, तुमको लगेगा कि क्वेश्चन तुमको आता है, तुमने सब पढ़ा है, बट लास्ट में पूछा क्या जाएगा, एक बहुत छोटी सी चीज पूछी जाएगी जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होगी या फिर स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड होगी। ठीक है, सो ये सब हम करेंगे अभी। चलो, let's start with the level of organizations. So we know that there are what is the level of organization, starting from individual. First level is individual, then second level is your population level, third level is community, do you have any doubt regarding the pattern, exam pattern that is to be followed? Voice is not clear? All or just enough? Okay, is it fine now? Okay, so let's continue. We are dealing with the levels of organization. So first level is your individual level, population level, then community, then what's the next level is ecosystem level, then landscape, then biome, and then biosphere. Okay, in this individual level I'll cover in very detail in your next unit, that is evolution. ओके, इवोल्यूशन में हम बहुत डिटेल में इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। देन कम्स लैंडस्केप लेवल। लैंडस्केप लेवल, I don't know why it's omitted from your syllabus. Earlier I think it was there, but now it's been removed. So I'll just tell you briefly about few concepts that are important in your landscape level. Actually these concepts are they correlate, concepts of landscape correlate to the concepts of your population. So I'll brief you about the landscape concepts after ecosystem, and
these two concepts, the biome and biosphere, I will be dealing these concepts in your last excuse last unit, that is biodiversity. Okay, so for now I'll be taking these 3 units here in this unit. First unit, that is ecology. So let's begin with the population now. Is it clear for everyone now how we are going to move about it? If you have any problem with this, you can raise it here. Okay. Is this PDF visible to all? Are you able to see this PDF? Okay. So let's begin with the population ecology. Okay. The word population is a Latin word. It is derived from a Latin word popular, that means people. But we all know that population is not all about people. Every living organism has its population, has a population. Population is basically the number of individuals of a particular species that are present in a particular area during a specific time period. So there are three components of a population that are important. So whenever we are going to report a population, we will be talking about the individuals of same species first thing, then of a particular area and during a specific time period. Just like you we have recently got the census of tiger in 2018. So how they reported the population of tiger, they said that the population of tiger is the specific species in India, that is the specific area, during 2018 is this much. Okay. And now, and in the same census, sorry, we have also got the population of tiger in Madhya Pradesh. So how am I going to differentiate that these tigers of Madhya Pradesh and these are the tigers of Karnataka? Because we have mentioned the specific area. Okay. So yeah, the three things that are important for the population is the individuals of same species during a particular time in a particular area. Next thing is yeah, the types of organisms. So there are two types of organisms, and further we study the populations according to the type of organisms that we are talking about. uh, the first type of population is a unitary population. Unitary populations are the one. Yeah, unitary populations are the one in which the organisms are derived from a zygote. So they are basically are formed from the sexual reproduction. The individuals are formed through the sexual reproduction, and then they grow into a genetically unique organism. Okay, so they are well recognized as an individual organisms, and there is no question of the breakdown. Like in modular, what happens in modular is the organism are derived from the asexual reproduction. So first the organisms are derived from the sexual reproduction, and then they grows into, or they spreads as per the asexual reproduction. So one second, I'm at the unitary. You got what do I mean by unitary population? These are the sexual reproduction से जो इंडिविजुअल्स बनते हैं वो यूनिटरी पॉपुलेशन होते हैं, वो यूनिटरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो यूनिटरी पॉपुलेशन होती है. ठीक है. इन इन इंडिविजुअल्स को हम जेनेट्स बोलते हैं बिकॉज दे आर द जेनेटिक इंडिविजुअल्स. मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूनिटरी तो होते हैं, यूनिटरी भी होते हैं, प्लस वो मॉड्यूलर भी होते हैं. वो यूनिटरी कैसे होते हैं? अगर कोई ट्री ग्रो करता है,
सपोज एक सीड से एक ट्री ग्रो किया, तो जब वो सीड से ग्रो करता है तब उस वक्त वो जेनेटिक ऑर्गेनिज्म है ना। पोलन्स गए, ट्रांसफर हुए स्टेमिना पे, ये क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो वो एक जेनेटिक इंडिविजुअल्स फॉर्म हो गए। जेनेटिक इंडिविजुअल्स के बाद वो ग्रो हो गए, उसके बाद जब वो ग्रो हो गए तो वो स्प्रेड होना शुरू करते हैं धीरे धीरे। वो स्प्रेड कैसे करते हैं, एक मॉड्यूल से वो दूसरा मॉड्यूल बनाते हैं, जैसे कि ब्रांचिंग होती है ट्रीज के केस में, या स्पॉन्जेस के केस में फर्दर ऐसे बर्ड्स निकलती है, वो निकलती जाती है, निकलती जाती है, निकलती जाती है। तो इस इन मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है कि उनका जो ग्रोथ होगा, ग्रोथ कैसे होगा ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, मगर यूनिटरी पॉपुलेशन के केसेस में कि ग्रोथ कैसे होगा ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल बन गया, जाइगोट बन गया, उसके बाद जाइगोट के बाद उसकी आंखें बनेंगी, फिर नाक बनेगी, फिर लिम्स बनेंगे, ये सारा प्री डिटरमाइंड है। मगर जो मॉड्यूलर पॉपुलेशन होती है, जो एक बार बनने के बाद, एक बार यूनिटरी पॉपुलेशन से बन गए, उसके बाद वो फर्दर किस तरीके से ग्रो करने वाले हैं फर्दर, ये हम डिटरमाइन नहीं कर पाते कभी भी। ये बहुत आर्बिटरी होता है कि अब बर्ड कहाँ से निकलेगी, है ना। तो इसलिए इनको हम कहते हैं रेमेट्स, और ये जो पार्ट्स होते हैं इनके सारे, इनको हम कहते हैं मॉड्यूल्स और रेमेट्स, और इसके जो पार्ट्स होते हैं सारे, उनको हम कहते हैं जेनेट्स। ये बात क्लियर हो गई? Okay, okay, I'm repeating all of it again. See, in case of unitary organisms, okay, the population of unitary organism is called as unitary population. These are the organisms जो sexually reproduction के बाद form होते हैं, और इन individuals को हम genetic individuals कहते हैं या genets कहते हैं। मॉड्यूलर इंडिविजुअल्स वो होते हैं, मॉड्यूलर इंडिविजुअल्स का एग्जांपल होता है प्लांट्स, सारे प्लांट्स नहीं, सॉरी सारे प्लांट्स। उसके बाद स्पॉन्जेस, एनिमल्स में एक ब्रायोफाइट्स, स्पॉन्जेस, ब्रायोफाइट्स, ये सारे जो एग्जांपल्स है ना, ये सारे मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनका क्या होता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक बार ग्रो हो जाते हैं, उसके बाद ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ग्रो भी हो सकते हैं, और फर्दर न्यू इंडिविजुअल्स भी बना सकते हैं। तो इनके जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो फर्दर इनका ग्रोथ होता है, मैं तुमको बताती हूँ ये होता कैसे। एक तुम्हारा ये सीड है, ये सीड तुम्हारा अब ग्रो हो गया, तो ये जो इंडिविजुअल बना अभी, ये जो प्लांट बना, ये तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना, है ना। पोलन्स मिले स्टेमिना से, और जो भी है सारा प्रोसेस तुम्हें पता है। तो ये जो इंडिविजुअल बना, ये जेनेटिक इंडिविजुअल है, इसको जेनेट बोलेंगे। अब मगर जब ये ग्रो होगा, फर्दर एक ब्रांच निकलेगी, दूसरी ब्रांच निकलेगी, और ब्रांच निकलेगी, रूट्स में भी ऐसा होगा, रूट्स स्प्रेड होती हैं, कभी कभी रूट्स यहाँ पे आ जाती हैं। अब फर्दर ये रूट अगर गिव राइज करेगी, जो ब्रायोफाइट्स में तुमने देखा है, एक रूट ऐसे स्प्रेड होती है नीचे सॉइल के, और उससे कितने सारे वो निकल सकते हैं। तो जो इसका ये स्प्रेड होने का तरीका है ना, तो ये जो एक इंडिविजुअल था ये तो जेनेट था, मगर ये जो जिस तरीके से बाकी सब स्प्रेड हुए, जैसे ये फैले हैं, इन सबको मॉड्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, तो जो मॉड्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है अपना ग्रोथ करने की, स्प्रेड करने की अपने आप को। अब ये क्लियर है? ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर। जो भी पॉपुलेशन होती है, उसके पॉपुलेशन के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पॉपुलेशन की एक। तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉपुलेशन पे ही अप्लाई हो सकती हैं, वो किसी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती कभी भी, है ना। तो the population has several characteristics or attributes that are function of the whole group and cannot be of an individual. What all these characteristics are actually given by Thomas Park.
And these 8 are the characteristics that we will be dealing one by one: population density, natality, mortality, age distribution, sex ratio, dispersion, dispersal, fluctuations, and oscillations. Actually, Ranjan ma'am has also told you about, I think you have attained her class also, attend. मैम ने भी काफी डिटेल में समझाया है, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे भी अच्छे से डिटेल में करेंगे, बिकॉज दिस कंसेप्ट, दिस ऑल दिस पॉपुलेशन वाला कंसेप्ट इज स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेट एग्जाम, पॉपुलेशन इकोलॉजी भी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी. ओके, सो या फर्स्ट लेट्स टेक पॉपुलेशन डेंसिटी. Density is the amount of individual per unit area. Amount can be the number of individuals, or it can also be the biomass of the individuals per unit area. Okay, so now there are two type of density. Density can be numerical density. What is numerical density? Numerical density is basically the number of, when we represent the density in terms of number, that we generally represent in case of the organisms that are of similar size, same size individuals, like anything, tiger, humans. इनकी अगर हम पॉपुलेशन रिपोर्ट करेंगे तो हम उनको न्यूमेरिकल डेंसिटी की टर्म्स में करेंगे. ठीक है, बायोमास डेंसिटी की टर्म में हम कब रिपोर्ट करते हैं डेंसिटी? जब हम किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन रिपोर्ट कर रहे हैं जो जिसका जो साइज है बहुत ज्यादा वेरी करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स, फिशेस. इवन फिशेस को भी कभी कभी बायोमास डेंसिटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. क्यों? क्योंकि फिशेस की पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है. मतलब जो इन्फेंट्स होते हैं जनरली बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, और विद मैच्योरिटी वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं सडनली. तो इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते ना, हम ये नहीं कह सकते कि वो जो बच्चा था, बच्चा इज इक्वल टू दैट बड़ा. नो, बिकॉज साइज में बहुत ज्यादा फर्क है. सेम इज द केस ऑफ प्लांट्स. एक पूरा फुली ग्रोन नीम ट्री इज नॉट इक्वल टू अ बेबी प्लांट. सो इसलिए उनकी जब भी डेंसिटी रिपोर्ट की जाती है वो बायोमास डेंसिटी की टर्म में की जाती है. और जो इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर साइज के होते हैं मोर और लेस, उनकी जब पॉपुलेशन डेंसिटी रिपोर्ट की जाती है वो न्यूमेरिकल डेंसिटी की टर्म्स में की जाती है. तो न्यूमेरिकल डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया. शुड आई राइट? Okay, yeah. So numerical density is your number of individuals per unit area, and biomass density is the biomass. Biomass is dry weight. उनका जो लेटर कलेक्ट करके या जो उसको पहले अवन ड्राई किया जाता है, अवन ड्राई करने के बाद उसका बायोमास निकाला जाता है. तो बायोमास per unit area is your biomass density. Second is your crude density versus niche density. What is crude and niche? These we will see further on here. क्रूड डेंसिटी के और दो नाम है. क्रूड डेंसिटी को हम एवरेज डेंसिटी और रीजनल डेंसिटी भी बोलते हैं. क्रूड डेंसिटी का मतलब होता है जो पॉपुलेशन होती है एक जोग्राफिक रीजन में विद रिस्पेक्ट टू द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट और बायोमास, है ना. तो इसमें क्या होता है, टोटल एरिया. हम क्या कह रहे हैं, ये पूरा एरिया है. सपोज दिस इज योर होल एरिया. तुमने यहाँ पे ये बियर की पॉपुलेशन देखी. सपोज तुमने ये 4 बियर देखे यहाँ पर टोटल एरिया में, अपने तुमने 4 बियर देखे, तो तुम बोलोगे कि क्रूड डेंसिटी या एवरेज डेंसिटी या रीजनल डेंसिटी इज 4 बियर पर एकड़. 4 बियर पर एकड़. ठीक है.
it is, chalo पढ़ लेते हैं. It is defined as the total number of individuals with respect to the total area or total volume. Total volume we consider in case of aquatic organisms. ठीक है, total area और total volume. तो यहाँ पे नीचे area और volume कुछ भी आ सकता है. Terrestrial organisms के केस में हम कहेंगे कि crude population density is equals to the number of individuals per unit area. और aquatic organisms के केस में हम कहेंगे कि crude population density is the number of total organisms per unit volume. So it's clear what is crude or average density or the regional density. Is it clear too? Okay, yeah. So the next one is your इकोलॉजिकल डेंसिटी, जिसके और भी नाम है नीश डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी और इकोनॉमिक डेंसिटी. ये नाम याद रखना, इनमें से अगर कोई भी पूछा जाएगा दैट मीन्स द सेम थिंग. इकोलॉजिकल डेंसिटी, नीश डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी और इकोनॉमिक डेंसिटी. इसका नाम हम इकोलॉजिकल क्यों बोल रहे हैं, नीश डेंसिटी क्यों बोल रहे हैं हम इनको? क्योंकि इसमें ये होता है कि अभी हमने देखा था कि पूरे बियर थे, ये एरिया था, इसमें 4 बियर थे. अब सपोज ये 4 बियर पूरे एरिया में ना रह के सिर्फ 1/4 ऑफ द एरिया में ही है. ठीक है, इस 1/4 एरिया में ये 4 बियर. मैंने तो क्रूड डेंसिटी अगर मैं निकालती तो मैं तो रिपोर्ट कर देती कि 4 बियर पर एकड़, बट बियर तो पूरे एरिया में तो नहीं है. ओके सर, ओके. So when we report, if I have to report it in crude density terms, I would have said that there are 4 beers per acre of the land, but all the beers are only in 1/4 of the acre. So what I'm going to say in ecological density or niche density, we will do is we will multiply 4 with 4. There are 16 beer per acre of land. Got it? Is it clear that why we are if we are okay, 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 okay. क्रूड डेंसिटी तक समझ में आया सबको कि क्रूड डेंसिटी क्या होता है? ओके, तो ठीक है. इकोलॉजिकल डेंसिटी पॉपुलेशन की वो डेंसिटी होती है जहां पे हम सिर्फ उसके नीश और उसके फेवरेबल हैबिटेट को ही देखेंगे. ठीक है, क्या होता है कि एक पॉपुलेशन में सारे इंडिविजुअल्स कभी भी एक पूरा एरिया कवर नहीं करते. वो सिर्फ उतना एरिया कवर करते हैं जितना एक्चुअली में उनको फेवरेबल है. अगर मेरा स्टडी एरिया ये पूरा 1 एकड़ है और मैंने देख लिए इसमें 4 बियर, तो मैंने बोल दिया कि अगर मैं क्रूड डेंसिटी, इफ आई हैव टू रिपोर्ट क्रूड डेंसिटी, देन आई विल से दैट देयर आर 4 बियर पर एकड़ ऑफ द लैंड. But those 4 beers will never occupy all of the area, because they will only occupy that area which is favorable to them, which is their niche. Okay, so in all of that area there might be places which are, these might be places which are unfavorable to those beer, and might be the case that they may never go that area. Okay, there may be the unfavorable spaces from which this species might be absolutely absent. So when we when we report ecological density or niche density, we say it is the number of individuals or biomass per unit of that area which is actually inhabited by those individuals, right? Yes. So if I have to report ecological density, if we'll report now, if we'll report ecological density, what we'll say that, what is density? Okay,
डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने थे 4 बियर, और एरिया कितना कवर कर रहे थे 1/4 ऑफ 1 एकड़, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 into 4 is equals to 16 बियर पर एकड़. Got it now? Yes. Okay. So now you see, did you notice that when we calculated crude density, it turned out to be 4. And when we reported niche density, it turned out to be 16 for the same. Okay, sir. Okay, sir. For crude density, we saw that crude density turned out to be 4 for the same number of individuals, same number of area. है ना? Similarly, niche density turned out to be 16 for the same number of individuals and the same area. So we can conclude that ecological density or our niche density will always be higher than our crude density. Please write it as important. This is very important, and you have to remember this point, that niche ecological density or niche density will always be higher than our crude density, because it is the actual area which the organisms are occupying, whereas the crude density is just the number of individuals per unit area. We do not consider whether the organisms, yeah, in crude density we do not consider whether the organisms are occupying particular area actually or not. Okay, is this clear for everyone? Yeah, I'll bit down, slow down. Don't worry. Right, exactly. Crude density is with respect to all the area, all our study area. उसकी अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है हम उसको एज इट इज रिपोर्ट कर देंगे, तो वो क्रूड डेंसिटी हो गई. हम बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली में कोई एरिया कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, वहां रहता है कि नहीं रहता, हमें उससे मतलब नहीं है. हमने टोटल एरिया में जितने इंडिविजुअल देखे हैं हम एज इट इज रिपोर्ट कर देते हैं. इकोलॉजिकल डेंसिटी में क्या करते हैं, हम अपना स्केल फर्दर नैरो डाउन करते हैं. हम एक्चुअली में जाके देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं. हम सिर्फ वो एरियाज मार्क करते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म होता है, उसके बाद हम उसको रिपोर्ट करते हैं. बट इन एक्चुअली जो स्टडीज होती हैं वाइल्ड लाइफ पे, इकोलॉजिकल डेंसिटी कभी भी रिपोर्ट नहीं की जाती. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिपोर्ट. No, there is no difference between numerical density or crude density. Crude density can be reported in terms of numerical density as well as biomass density. Numerical density versus biomass density is one thing. Crude density versus ecological density is another thing. You report crude density in terms of both numerical density as well as biomass density. Yeah, no. You have got the concept wrong actually. Okay, clear? Okay, then it's fine. Yeah, so I was telling you that in actual studies we never report ecological or niche densities because it's very difficult to, first thing, it's very difficult to actually estimate the density for wild animals. ठीक है, प्रॉपर डेंसिटी कभी भी एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं. जितने भी हमने प्रोसीजर्स बनाए हैं, जो कि हम अभी पढ़ेंगे भी आगे, सारे प्रोसीजर्स पॉपुलेशन डेंसिटी एस्टिमेशन के, ये सिर्फ प्रोसीजर है जिससे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हम अंदाजा ही लगा सकते हैं. उसके बाद ऊपर से फर्दर नैरो करना स्केल्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. नोबडी एक्चुअली गोज एंड सी कि बियर कितने एरिया में स्पेसिफिकली रह रहा है. यू नीड डेज एंड डेज एक्चुअली नो कि वो मूव कर रहे हैं पोर्ट,
crude density only. Okay. Should I move now? Voice breaking? Oh, voice. Okay. So is it fine now? Good to go? Okay. Okay. I hope you are. This is very important. Any the numerical density, biomass density, crude density, or ecological density. If no doubt, let's do a numerical then. Okay. So the if, uh, if there are 200 beers, crude density and niche density, please do not cheat, although it's written here, but try to do it yourself and tell me. Again, it's fluctuating. Okay, should be fine. How is it now? Fine. Okay. Then please try to do this question on your own, although it's already done. But do try, give it a try. Try to find crude density as well as niche density. It's the similar one that we have done. Take 1 minute and then we. Everyone, please do try. It's important. Good, Lipsa. Okay, I think all of you should be able to do it. Is there anyone who is not able to do it and not with us, not able to understand the concept? So we can start over again. Otherwise, we'll move. Clear? Okay. So okay, let me just brief you again. If there are 400 beers that are present in an acre that are inhabiting, you got to know that they are inhabiting only 1/4 of that acre. The crude density is the total number of individuals upon yeah, the total number of individuals per unit area. So you will report them as it is 200 beers per acre, whereas your niche density will be that the number of individuals upon favorable area only, that is 200 beer upon 1/4 of the acre. That will turn out to be your 800 beers per acre. Now one thing you must remember is that niche density is always overestimated. This is also density is always. Someone is saying something.
Hello. Yes, Lipsa. What is the doubt? Is it fine now? Are you able to hear me? Yes. Okay. Lipsa, please go ahead with your doubt. Exactly. That's what I am telling you. It is uh, no. The beers will not increase. We just assume that if in 1/4 acre there are 400 beer, then in all the acre, in 1 acre there should be 800 as per the norms. But that's what I am telling you. This niche density is highly overrated and overestimated. इसमें हम there is always a chance of overestimating the population. That's why also it's not used. And second factor, it's not used also because oh, 1 second. The another factor is that because it's very difficult to go up to that scale. So this is not used generally. It is also only the theoretical, you can say theoretical concept. Always crude density is reported. There are always a chance of overestimating the population. Okay. Yeah. Okay. So next concept is now the factors. What are the factors that affect our density? So there are 4 factors that affects density. That is natality, mortality, immigration, and immigration. Natality and immigration adds to the population. These two factors they add to the population, whereas the immigration and mortality they reduce the population, they declines the population. So if the population initially okay sir. So if the population initially was n, say the initial population was n, so population after time t will be n plus birth rate minus death plus immigration minus immigration. Is it not visible? Okay. So if the excuse me, if the initial okay, I'm using red pen now. If the initial population was n, suppose, then population after time t will be n t is equals to n plus births minus death plus immigration minus immigration. This is called as Krebs concept. Krebs has given this concept in 1972, and these 4 factors of those 4 bears, if one dies, then we will have a population of 3 bear. And if there is another bear dead to birth in study, similarly
Is it fine now? Repeat. Yes, I'm repeating. Is it the voice is clear now? Yes. Okay. 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 Then let's move ahead. Yeah, the Crab has given this concept in 1972, and he said that these four factors affects the population density. The four factors are births and immigration that adds to the density, whereas deaths and immigration that reduces the density. So if we have a population of n individuals, so after time t we have population nt is equals to n plus births minus deaths plus immigration minus immigration. Okay. 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 So this is very simple concept, and we all know it from earlier classes, but we'll study it in details. Okay. We'll study one by one what is natality, what is mortality. Okay, what is the why do we study population density? This is also an important, and I am telling you each and everything in so much of detail because they will never ask you any factual question. Okay, they are not going to ask you what is the Krebs equation, what affects the density. No, they'll ask you the questions related to how are you going to apply this population density on this situation. These kind of questions will be asked. So you have to be able to know the application of the concepts, that all concepts that we are studying. So population density हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि first thing हम species conserve कर सकें. अगर हमें किसी भी species का number नहीं पता है, for example एक species A है, उसकी suppose number है, उसके हैं अभी हमारे पास 18 individuals, है ना, और एक स्पीशी है बी, उसके हैं हमारे पास 300 इंडिविजुअल्स, और हम स्पीशी बी को बचाने में लगे हुए हैं. 300 और ज्यादा कर दो, 3000 इंडिविजुअल्स हैं, हम इस स्पीशी को बचाने में लगे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी कितनी है. सो वी विल बी एट अ मेजर लॉस अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी पता होना चाहिए ताकि हम स्पीशीज को कंजर्व कर सकें, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना सकें, और इसी की बेसिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी एस्टिमेशन के बेसिस पर ही रेड लिस्ट कैटेगरीज बताई जाती है, थ्रेट कैटेगरीज, सब सब कुछ मतलब कंसिडर करके. तो पहला एप्लीकेशन तो ये. दूसरा एप्लीकेशन गेम हंटिंग रेगुलेट करने के लिए. गेम हंटिंग कैसे रेगुलेट करते हैं, इसका एग्जांपल मैं तुमको देती हूँ. गैलीफॉर्म्स की स्पीशीज अगर तुम लोगों को मालूम है तो गैलीफॉर्म्स जो होते हैं, दीज आर दी मुर्गियां बोलते हैं इनको. ये पिकॉक फैमिली में आती हैं सारी, ठीक है. इसमें इसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. इसमें रेड जंगल फाउल जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है वो भी होता है, इसमें पिकॉक भी है, इसमें एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज भी हैं, जैसे कि हिमालयन मोनाल है, रेड ये चेयर फिजेंट है, कलेज है. दीज ऑल स्पीशीज आर इन द सेम कैटेगरी ऑफ गैलीफॉर्म्स. मगर गेम हंटिंग गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर रखी है चेयर फिजेंट के लिए, कलेज के लिए, मोनाल के लिए, ब्लड फेजेंट के लिए. एक और है वेरी वेरी रेयर एंड नियर एक्सटिंक्ट कैटेगरी, आई थिंक इट इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ट्रैगोपैन. ट्रैगोपैन इनके लिए जो हंटिंग है वो गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर रखी है. नो बडी कैन हंट किल दीज बर्ड्स फॉर मीट. पहले इनको मार के इनके मीट खाया जाता था, जैसे अभी नॉर्मली हम रेड जंगल फाउल का मीट नॉर्मली लोग खाते हैं, उसी तरीके से इनको भी खाया जाता था बिकॉज दे आर ऑल द सेम फैमिली. बट इनके अब इन
को नहीं मार सकते। रेड जंगल फाउल को हम अभी भी मार सकते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं उसके सेम फैमिली के मेंबर जिनको अभी भी मीट के लिए मार सकते हैं। हम उनको ब्रीड भी कर सकते हैं, रेयर भी कर सकते हैं और उनका मीट बेचा भी जा सकता है, मगर इनको नहीं मार सकते। Okay, so for this, second is next is fish regulation. Fishing regulation का we all know that government allows a certain time duration जिसमें fishing activities completely prohibited होती हैं। उस ड्यूरेशन में क्यों prohibited होती है? क्योंकि वो spawning duration होती है, वो उनकी ब्रीडिंग वो उनकी ब्रीडिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट टाइम होता है। अगर हम उस टाइम पे फिशिंग अलाउ कर देंगे तो फिर हम पॉपुलेशन डेंसिटी उनकी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, है ना? तो हम MSY का कंसेप्ट भी देखेंगे अभी। MSY इज मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, ठीक है? फिशिंग इस टाइम पे जब ऐसा टाइम होता है जब वो अपने पीक पे होते हैं, पीक ग्रोथ पे होते हैं, तब गवर्नमेंट फिशिंग एकदम छूट कर देती है। बाकी टाइम में कुछ लिमिटेशंस होती हैं और कभी-कभी ऐसे टाइम भी होता है जो बिल्कुल फिशिंग बैन कर देते हैं, एकदम बंद कर देते हैं। तो दिस इज टू बेसिकली टू रेगुलेट देयर पॉपुलेशन। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल खत्म हो जाए और ऐसा भी ना हो कि जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। नेक्स्ट इज टू know the amount of pesticide to be applied in the field with respect to the density of pest. This is also very important. अगर तुमको पता है कि तुम्हारे फील्ड में कितने पेस्ट हैं, से फॉर एग्जांपल लोकस्ट तुमको मालूम है कि तुम्हारे खेत में कितने लोकस्ट हैं, तुमने क्या किया, तुमने लोकस्ट कलेक्ट कर लिए। कैप्चरिंग मेथड्स भी मैं तुमको पढ़ाऊंगी, कैसे कैप्चर करते हैं लोकस्ट को और इंसेक्ट्स को कैसे कैप्चर करते हैं। हाँ, तो कैप्चरिंग, तुमने लोकस्ट को कैप्चर कर लिया, उसके लिए एक ऐसा डिवाइस आता है इस तरीके का। एक ये हैंडल होता है, ये नेट होता है बड़ा सा, ये 3D है, ओके, ये ऊपर से खाली है, ये नेट होता है। इसको हमें ऐसे घुमाना होता है पूरा 360 डिग्री, खड़े रह के बीच में इसको पकड़ के। तो तुम्हारे पास जितने इसमें फंसते हैं ना इंसेक्ट्स, उसके बाद तुम देखते हो कि वो 360 इसका एरिया कितना आया, उसके बाद तुम अपनी फील्ड का एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो इसमें क्या होता है, तुमने पता कर लिया कि तुम्हारे फील्ड में इंसेक्ट कितने हैं, ठीक है? तुमने उसकी डेंसिटी एस्टिमेट कर ली और तुम्हें पता है कि एक पेस्ट को मारने के लिए तुम्हें कितना पेस्टिसाइड चाहिए। तो तुम उसी हिसाब से पेस्टिसाइड स्प्रे करोगे अपनी फील्ड पे। इतना पेस्टिसाइड नहीं कर दोगे, फ्री स्प्रे की जरूरत भी नहीं है और तुम फालतू में पैसे वेस्ट कर रहे हो, है ना? तो इसलिए भी ये काम आता है पॉपुलेशन डेंसिटी एस्टिमेट करने का। नेक्स्ट इज इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वेयर रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड एंड डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा फील्ड है, ये जो सॉइल है हमारी, सॉइल की एक नेचुरल कैपेसिटी होती है, हमें उतना ही इसमें प्लांटेशन करना है कि हमें मैक्सिमम यील्ड मिले। एक होता है ओवर क्राउडिंग, अगर ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाएगी तो भी हमें नुकसान होगा, और अगर हम जरूरत से कम ग्रो कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, तो भी हमें नुकसान होगा। हमें एग्जैक्टली उतना ही इसमें लगाना है जिससे हमें सबसे ज्यादा फायदा हो, सबसे ज्यादा यील्ड हो। सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस एंड देयर आर मेनी मोर एक्चुअली, जो मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया, बट इससे तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम पॉपुलेशन डेंसिटी अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या कुछ? anyone if you have any doubt please ask. Clear? Okay, so let's move ahead now. Next concept is the measurements of population density. इसमें सारे सैम्पलिंग मेथड्स आते हैं। सैम्पलिंग मेथड्स में आता है पहला टोटल Okay, sir. Okay, okay.
Okay. Yeah. So how, what are the methods of measuring the population density? इनको sampling methods भी बोलते हैं. पहला method है इसमें total count. Total count हम उन organisms के लिए करते हैं जो कि जिनका size बड़ा होता है, ठीक है. जैसे कि होते हैं हमारे elephants. Elephants है, अगर तुम अगर elephants को study कर रहे हो अपने study area में, तो ठीक है, तुम एरियल व्यू से उनको उनका काउंट कर सकते हो ना, दिख सकते हैं वो. तो एलिफेंट्स को टोटल काउंट कर सकते हैं. ट्रीज को, जो बड़े ट्रीज होते हैं, कभी कभी फील्ड्स में ट्रीज को भी हम टोटल काउंट कर लेते हैं. अगर बहुत ज्यादा स्पार्सली स्प्रेड होते हैं ट्रीज, तो उनको भी कर लेते हैं. अगर ज्यादा कंजेस्टेड होते हैं, ज्यादा डेंसिटी होती है, तो फिर दूसरे मेथड यूज करते हैं. ठीक है, टोटल काउंट्स के लिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को टारगेट किया जाता है जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है. नेक्स्ट इज, अच्छा, टोटल काउंट्स के लिए एरियल फोटोग्राफ्स भी लिए जाते हैं. Do you know that एलिफेंट्स का सेंसस एरियल व्यू से भी होता है. ऊपर से एरोप्लेन से फोटो ले लेते हैं, अगर काउंट कर सकते हैं तो काउंट कर लिया जाता है, नहीं तो फिर फोटोज पिक्चर्स क्लिक कर लिए जाते हैं और फिर बाद में उनको काउंट कर लिया जाता है, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू काउंट देम. Then comes the second thing is line transects. Line transects में this is a bit complicated. क्या होता है line transects में? हम ऐसे pathways choose करते हैं जिसपे हम easily move कर सकते हैं. ठीक है, तो ये रोड हो सकता है, अगर सपोज ये रोड के दोनों तरफ है, या फिर दिस इज अ कच्चा रास्ता जंगल के बीच में से, तो तुम उसको भी चूज कर सकते हो. या फिर कोई रिवर है ये, तो उसके भी किनारे किनारे तुम चल सकते हो. तो इसमें करना क्या होता है, तुमको वॉक करना होता है. एक बार इधर इस तरफ, जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम सिर्फ इस तरफ देखोगे. ठीक है, यू विल सी ओनली दिस साइड. ओके, यू आर वॉकिंग इन दिस डायरेक्शन एंड यू विल सी ओनली दिस साइड अप टू 200 meters only. Okay, you will see up to, यहाँ तक तुमको जितना भी दिखता है, मतलब जितना भी, सब कुछ नहीं, सिर्फ अपने मतलब का जो भी ऑर्गेनिज्म तुमको चाहिए, 200 मीटर के अंदर तुमको वो जितना भी दिखता है, तुम उसको नोट डाउन करोगे. फिर तुम इधर से जाओगे इस तरफ, और तुम इस तरफ सिर्फ इस डायरेक्शन में देखोगे. इस डायरेक्शन में भी तुम सिर्फ 200 मीटर्स तक देखोगे. ठीक है, बाद में क्या करते हैं हम इसमें, एक तो ये जो लाइन ट्रांजेक्ट वाला मेथड है, ये हमारे जो मीडियम साइज्ड एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी यूज करते हैं. ये वाला मेथड हम बर्ड्स के लिए भी यूज करते हैं. कभी कभी बर्ड्स के लिए हम पॉइंट काउंट भी यूज करते हैं, वो मैं भी तुमको बताती हूँ कैसे करते हैं. तो लाइन ट्रांजेक्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसमें एरिया कैसे कवर होता है? इसमें एरिया, अगर तो देखो तुम्हारा एरिया ऐसा है कि उसमें ट्री जो प्लांटेशन है वो बहुत कम है. मैं तुम्हें दोनों बता देती हूँ. एक तो एरिया तुम्हारा ये है, ठीक है, यहाँ पे नो प्लांट्स, सपोज नो प्लांट्स और वेरी लेस प्लांट्स. ठीक है, ट्रीज बहुत कम है, बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा स्पार्स ट्रीज हैं. जैसे कि गुजरात वाला एरिया हो गया, जैसे कि राजस्थान वाला एरिया हो गया, सपोज डेजर्ट हो गया. इसमें सपोज तुम डेजर्ट में अगर वाइल्ड एशेस का कर रहे हो, तो तुम करोगे क्या, तुम इस तरीके से लाइन ट्रांजेक्ट्स बनाओगे अपने, इस तरीके से लाइन ट्रांजेक्ट्स चूज करोगे कि 200 200 200 200 200 200 तुम्हारा सारा एरिया कवर हो जाएगा. ठीक है, तो एक तो तुम्हारा ये हो जाती है स्ट्रेटजी. दूसरी स्ट्रेटजी क्या होती है तुम्हारी, कि अगर तुम्हारा एरिया ऐसा है जो बहुत ज्यादा प्लांटेशन है, बहुत ज्यादा ये डेंस है, तुम अंदर जा नहीं सकते, तो तुम क्या करोगे, तुम इसके बाहर बाहर सैम्पलिंग करोगे. ठीक है, तुम 200 तक तुमको यहाँ क्या दिखा, ठीक है, इसमें तुम्हें 200 तक जो भी दिखा, वो बाद में तुम पूरे एरिया में मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हमने पीछे किया था डेंसिटी के केस में, कि इतने एरिया में अगर 1/4 एरिया में 4 बियर, तो A1 एरिया में 16 बियर. सेम चीज इसमें अप्लाई करती है. ठीक है, ये समझ में आया सबको लाइन ट्रांजेक्ट्स कैसे करते हैं? यस, सबको समझ में आया? Only few people are active in the class.
these concepts are actually important. That's why I'm telling you. Otherwise, nobody will teach you what are the sampling methods and how do we do sampling methods. And after doing sampling methods, how are we going to do the population and density estimation? Okay. So, okay, I'm ending today here in the line transits. After two site sampling, yes. What is done? Okay. What is the see in line transits? Yeah. What is done after two site transacts, you are asking. I told you now, if your area is like this, if your area has less trees and it is clearly visible, okay, you clearly visible and movable, तो तुम उसमें इस तरीके से ट्रांजेक्ट्स अपने लगाते हो कि तुम पूरा एरिया कवर करो, ठीक है, 200 इधर, 200 इधर, 200 इधर। इस केस में तो तुमने खुद ने अपना पूरा एरिया कवर किया है, और तुम जितने भी तुमको सारा मिला के जितने भी इंडिविजुअल्स मिलेंगे ना, सपोज यहाँ पे तुमको 400 वाइल्ड एसेस दिख गए, तो तुम 400 रिपोर्ट कर दोगे एज इट इज कि देयर आर 400 वाइल्ड एस पर यूनिट ऑफ एरिया, मतलब दिस मच ऑफ एरिया। बट इस केस में क्या होता है, इस केस में तुम्हारी ये ट्रीज डेंसिटी इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, ऐसे क्रॉस ट्रैक्स नहीं बना सकते अपने लिए, ठीक है, क्रॉस ट्रैक्स नहीं बना सकते, तो तुम क्या करते हो, सिर्फ बाहर बाहर सैम्पलिंग करते हो, ठीक है, बाहर से तुमको यहाँ से मूव करते में तुमको इधर क्या दिख रहा है 200 की रेंज में, ठीक है, तो ये पूरा एरिया तुम्हारा 200 बाई 200 तुमने कवर कर लिया। अब एरिया निकालो इसका, ये कितना एरिया आया, फिर उसको इसमें भी देख लो, अप्लाई कर दो। समझ में आया बात तुमको? ओके, अगर इसमें डाउट है तो सैम्पलिंग मेथड्स हम कल करेंगे दोबारा से, बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट। इसमें स्पेशली इम्पोर्टेंट जो CMR MMR टेक्निक्स होती हैं, क्वाड्रेट मेथड्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इवन लाइन ट्रांजिट्स आर इम्पोर्टेंट। तो अलग से कल स्टार्ट करते हैं ये, ठीक है। आई होप आज जितना भी किया है सबको समझ में आया होगा। ओके, ओके, थैंक यू।